Okay, so we were doing buffers. We did various questions on buffers. Let's continue with two more questions. So, in this question, they are asking, what is the volume of 5 molar NaHCO3 solution that should be mixed with 10 ml of 2.5 molar H2CO3 solution in order to maintain a pH of 7.4? pKa of H2CO3 is given. So let's try to understand what all things are present in our mixture. First of all, they have specified that NaHCO3 should be there. So NaHCO3 is one component. And along with NaHCO3, they are mixing H2CO3. So this is the other component. NaHCO3 and H2CO3. These are the two components present inside my mixture. And then they have said that the pH of this mixture is 7.4. So pH of this mixture is given. Looking at this mixture, now tell me, what kind of mixture is this? What is this? What can we call this mixture? What is the nature of this mixture? Acidic buffer. Yeah, so it's a buffer because see now H2CO3 is present. It's a weak acid. Along with H2CO3, you have a salt. And the cation of this salt is coming from a strong base, that is Na plus is a cation. So I can call this a buffer. The moment I know that this is a buffer, I can use the formula for a buffer. So this is the formula for the buffer. This is the anion. And this is the acid. So I can put the values here. In the question, they have mentioned the pH. The pH is 7.4. And also the pK is mentioned. pK is given as 6.7. What else is given? The molarity of this NaHCO3 is given, 5 molar. They have asked for the volume. So can I say moles of HCO3 minus moles of HCO3 minus will be molarity into volume in liters. Molarity is given as 5. 5 molar is the molarity of NaHCO3. Volume is unknown. Let the volume be V liters. So this many moles of HCO3 minus will be obtained if I multiply 5 and V. So moles of HCO3 minus is equal to 5V. Where V is the volume. How many moles of H2CO3 are there? Yes. How many moles of H2CO3 are there? Carbonic acid, H2CO3. 25 millimoles. 25 millimoles. So how many moles? 25
upon 1000. 1000. I need moles because I have calculated the number of moles for HCO3 minus. So for this H2CO3 also I need the number of moles and not the number of millimoles. If I am taking everything in moles, then accordingly volume has to be in liters. So I can put the number of moles here. Moles of HCO3 minus upon moles of H2CO3. So 5V is the moles of HCO3 minus because 5 is the molarity and V is the volume in liters. So I'm solving this. If I put the value of pH as 7.4, which is given in the question, then I'll get this. Okay, now I'm solving this further. 7.4 minus 6.7 is 0.7. So I'll get this 0.7 is equal to log 200 V. Now 0.7 is log of what? We have done this already. 5. Log 5. Log 5 is log 10 upon 2. Log 10 is 1. Log 2 is 0.3. So log 10 minus log 2 will be 1 minus 0.3, that is 0.7, which means log 5 is equal to 0.7. So I can write log 5 in place of writing 0.7. Now I can remove log from both sides of this equation. So I'll get this. And then finally V will be equal to 5 upon 200. Now this V is in liters. Multiply by 1000. So I get the final value of volume as 25 ml. This V, that is 25 ml, was what? This V was the volume of NaHCO3. They had asked us for the volume of NaHCO3. I assume that to be V, liters. So basically, we had to identify the nature of this mixture, and this was a buffer. That is why we could go ahead with the formula of a buffer. Okay, next question on buffers. Yes, copy the question.
So can you scroll down a little? Yes. Okay. What all things are present in our solution? What all things are present in our solution? NH3 and NH4 whole twice SO4. So in the solution, I have two components. One is NH3 solution and one is NH4 twice SO4. What is the meaning of this? What is the nature of the solution? Basic buffer. Basic buffer. Okay. What is the base here in this basic buffer? NH3. NH3. Okay. And what is the salt? NH4 whole twice SO4. Which means I have a weak base, NH3 is a weak base, and along with the weak base, I have a salt of that weak base. Also, if you look at the salt, what is the anion of the salt? SO4 2 minus. SO4 2 minus is the anion of the salt. Okay. What is the this thing? This anion of the salt is coming from which acid? H2 SO4. Which is strong or weak? H2SO4 is strong or weak? Strong. Strong. Strong, which means SO4 2 minus is coming from H2SO4. So the anion of this salt is coming from a strong acid, and hence the mixture of the salt and base is called a basic buffer. So I have a basic buffer wherein NH3 is a weak base and the salt is NH4 twice SO4. Okay. Now tell me what all things are given. Moles of NH3 and the pH. pH of the solution is given, okay. Then NH3, molarity of NH3 is given. 0.2 is the molarity of NH3. Volume of NH3 is also given, which is 500 ml. Since I know the volume and also I know the molarity, I can find out the value of moles of NH3. So which is the formula that I'm supposed to use for this basic buffer? फाइंड क्या करना है? फाइंड तो करना है, बोला कि grams of NH4 twice SO4. सर pOH वाला फॉर्मूला. हाँ, पहले तो फॉर्मूला क्या है वो देखना पड़ेगा ना. बेसिक बफर है तो बेसिक बफर के हिसाब से जाना पड़ेगा. pKb plus log cation upon base. What is that? That is the formula for pOH. Okay, correct. So POH. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? pH. तो उसको pH. बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14. So 14 minus pH will be POH. So I can say this: the mixture of NH3 and NH4 twice SO4 is a basic buffer. Whenever I see a basic buffer, I can use the formula for POH.
So PKB. POH is equal to PKB plus log of. नहीं सर उसका वैल्यू थोड़ा सा ऊपर It is given, no? ओके सर. In the question you see PKB is given. Okay. So this is going to be the formula for POH of the buffer. Okay. So value of pH is given 9.3. So I can get the value of POH. The POH will be 14 minus 9.3. POH is equal to 14 minus pH. PKB is given in the question. And NH4 plus is the cation of the salt. As per the formula, it is what? POH is equal to PKB plus log of concentration of cation upon concentration of base. So this is the cation. And this is the base. So for a basic buffer, I need the concentration of cation and also I need the concentration of the base. So in place of concentration in this formula, I can also write moles because concentration is moles upon liters. So directly I can write moles because liter and liter will get cancelled. Moles upon liters, moles upon liters. So both are in the same solution. So the total liters is same. So I need not write liters. I can directly write moles in place of writing concentrations. What is the value of moles of NH3? 0.1. Look at the question. We have been given 500 ml of 0.2 molar NH3. 500 ml of 0.2 molar NH3 means I can get the number of moles of NH3. I can multiply the volume and molarity to get the moles. So 500 upon 1000 is the liters. If I multiply it by the molarity, I get the number of moles. This is the number of moles. So 500 upon 1000 into 0.2 is the number of moles. On solving this, I'll get what? This will be equal to 0.1, which means that the moles of NH3 is equal to 0.1. Okay, so I can put the value moles of NH3 as 0.1. Yes, not LV. How to solve this further? सर रिएक्शन लिख लेंगे फिर x अज्यूम कर लेंगे NH4 प्लस के मोल. हाँ वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर 0 को log 1 लिख सकते हैं. हाँ, so if you notice यहाँ पे 4.7, यहाँ पे भी 4.7, मतलब 0 हो जाएगा अगर इस तरफ लेके जाऊंगा तो. And log 1 is 0. तो 0 लिखने के बदले में I can write log 1. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग.
and then I can remove log from both sides of this equation. If I remove log from both sides of this equation, I get this. Okay. Question में पूछा था how many grams of NH4 twice SO4 should be added. What I have found out now is the moles of NH4 plus. So how do I now go from here till grams of NH4 twice SO4? Yes, tell me. सर रिएक्शन लिखेंगे उसको डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा फिर वो क्योंकि 2NH4 रिलीज होगा. Which reaction? सर NH4 होल ट्वाइस SO4 का. NH4 होल ट्वाइस SO4 को हम लोग डिसोसिएट कर सकते हैं. जो NH4 प्लस आ रहा है वो NH4 ट्वाइस SO4 से ही तो आ रहा है. तो अगर इसका डिसोसिएशन दिखाएंगे तो डिसोसिएशन में ये देख सकते हैं हम लोग कि जितना NH4 प्लस आ रहा है, जितना NH4 प्लस आ रहा है, that is exactly twice the number of moles of NH4 twice SO4 dissociated. अब क्या होगा अभी? सर डिवाइडेड बाय 2 इनटू मोलर मास. So 0.1 moles किसके हैं? NH4 प्लस के हैं. Please note this, हाँ, NH4 प्लस के 0.1 moles है. NH4 twice SO4 के 0.1 moles अभी तक हम लोगों ने नहीं बोला ऐसा कुछ. We have just found out the number of moles of NH4 plus. Because फॉर्मूला में यहाँ पे कैटाइन होता है सिर्फ. कैटाइन यहाँ पे NH4 प्लस था. तो NH4 प्लस के मोल्स हमारे पास आ चुके हैं. 0.1 moles of NH4 plus. Now, NH4 twice SO4 के अगर मोल्स चाहिए, so इस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि NH4 twice SO4 के मोल्स कितने हो जाएंगे? हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 प्लस. मोल्स ऑफ NH4 प्लस 0.1 है, तो NH4 twice SO4 के मोल्स कितने हो जाएंगे? हाफ ऑफ 0.1. Half of 0.1 is 0.05 moles. The 0.05 moles of NH4 twice SO4 are required. क्वेश्चन में तो ग्राम्स पूछा था, हम लोगों ने अभी मोल्स निकाल लिया. नाउ व्हाट टू डू? मोलर मास से मल्टीप्लाई. into molar mass. So 0.05 is the number of moles of NH4 twice SO4. Multiply the number of moles by molar mass, you will get the grams. ये हो जाएगा 132 मोलर मास आएगा अगर आप निकालोगे तो, कैलकुलेट करोगे तो.
So final answer will be 6.6 grams. ये NH4 twice SO4 के ग्राम्स है. Okay. Solve another question now. Short one. Yes, try this one. Yes, try this one. What all things will happen? Tell me how we'll start. सर सबसे पहले उन दोनों का रिएक्शन करा देंगे, फिर बफर मिल जाएगा. तो क्या होगा रिएक्शन? CH3COH और KCl फॉर्म. Okay. So tell me, find out the value. हर एक का मोल्स निकाल लो पहले. Whenever you start with a reaction, the first task is to calculate the number of moles. Yes. बोलो क्या होगा इसका? कैसे चालू करेंगे? Say something. सर HCl लिमिटिंग रिएजेंट है. Okay. क्या होगा इसमें पहले चालू कैसे करेंगे? CH3COOK प्लस HCl. ये आपका रिएक्शन हो जाएगा. Then CH3COOH प्लस कैसे ये बन जाएगा. This is going to be the reaction. Now let's find out the number of moles. Initial number of moles क्या है देखते हैं. वो मोल्स तुम्हारा ये कर देंगे. बोलो शुरुआत में कितने मोल्स थे? CH3COK के पोटेशियम एसीटेट 0.2. 0.2 multiplied by 1000 upon 1000. That is molarity into liters. तो 0.2 आ जाएगा मोल्स.
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल्स है? 0.0. 0.1 is the molarity of HCl. 500 ml is the volume. So volume into molarity is moles, but volume has to be in liters. So 500 upon 1000 अगर मैं liters में convert करूँ तो 500 upon 1000 कितना हो जाएगा? 0.5. 0.5 into 0.1, that is 0.05. This is going to be the beginning. अब रिएक्शन हो जाने के बाद क्या होगा? सर 0.05 फॉर्म होंगे तो हाँ सर वो और CH3CO के का 0.15 HCl पूरा खत्म हो होता है। गया। 0.15. HCl तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। पोटेशियम एसिडेट के 0.05 मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा। हाँ सर हाँ सर. And how many moles of CH3COOH should be written? 0.0 0.05. Yes. Likewise for KCl also. हमारा सोल्यूशन फिलहाल ऐसा है जहां we have CH3COOK, सर एसिडिक CH3COOH बफर मिल गया। and KCl. KCl को तो pH के लिए इग्नोर करना है because KCl is a salt of first category wherein hydrolysis is not possible. So KCl does not impact the pH. So anything which does not impact the pH is going to be ignored completely. So ignore KCl completely. Now I will look at the other components. One is CH3COK, one is CH3COOH. I have a mixture of two components. CH3COH is a weak acid and CH3COK is a salt of the same weak acid. But उसका हाँ, कैटायन base भी पोटेशियम है। strong है। हाँ, तो पोटेशियम कैटायन है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से वो Ka plus आ रहा है, which means that this is a salt of a strong base because potassium hydroxide is a strong base. So solution के अंदर क्या हो गया अभी? Acidic buffer हो गया। एक आपका ये और एक आपका ये। This is going to be the acidic buffer. इसके हिसाब से फिर फॉर्मूला लगाएंगे। So pH is equal to yes log of ऐसा हो जाएगा। सर के दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ दिया है। pK is given to you as 4.75. सर अभी हम जो कंसंट्रेशन लेंगे उसमें 1.5 लीटर लेंगे ना? अभी concentration is moles upon liters. अभी moles कितने CH3CO minus के देखते हैं पहले। पोटेशियम एसिडेट से मोल्स ऑफ CH3CO माइनस आएंगे, दैट इज 0.15 मोल्स। तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.15 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज व्हाट? 1.5 हो जाएगा ना? 500 ml प्लस 1000 ml दोनों को मिला दिया तो 1500 ml व्हिच इज 1.5 लीटर्स। लेकिन हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों? देखो इसका भी तो ऐसा ही आएगा। So even if you don't consider the total volume for concentration in this particular ratio, it's okay. We can directly go ahead with moles like we have done in the previous questions. क्यों ऐसा? क्योंकि आप जब वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वो वॉल्यूम कट जाएगा ना नीचे और ऊपर। तो CH3COH के कितने मोल्स है? 0.05।
So सीधा मैं लिख सकता हूँ 0.15 upon 0.05 rather than dividing by 1.5 and then writing. I can directly take the number of moles of the components like I've done in the previous questions. क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि moles upon liters तो लीटर तो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों का लीटर हमेशा सेम रहेगा, उसी सोल्यूशन में है दोनों. So 0.15 upon 0.05 3 हो जाएगा. ऐसा हो जाएगा. log 3 0.477 अप्रोक्सीमेटली 0.48 ले सकते हैं, कुछ लोग 0.47 भी लेते हैं. 0.47 होता है ना, इट्स एग्जैक्ट 0.477. तो उसको थर्ड डेसिमल के बाद ये करना है राउंड ऑफ तो 0.48 कर सकते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस. ऐसा कुछ नहीं है. This will be the final answer. If you take it as 0.47, then 5.22 is going to be the answer. वैसे भी ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, दोनों तो नहीं रहेंगे. या तो 5.23 रहेगा या तो 5.22 रहेगा. सर अगर न्यूमेरिकल हुआ तो? न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में अगर ऐसा हुआ तो या तो वो बोल देते हैं ब्रैकेट में कि टेक log 3 equal to something, ऐसा बोल देंगे. और अगर बाय चांस नहीं बोला है, then both will be marked correct. ओके. क्वेश्चन में पीके के वैल्यूज दिए रहते हैं या फिर के भी दिए रहेंगे, के तो आपको पीके निकालना पड़ेगा. पीके इज व्हाट माइनस लॉग ऑफ के. तो अगर पीके नहीं दिया है तो के दिया रहेगा, तो आपको पीके निकालना पड़ेगा. पीके इज माइनस लॉग ऑफ के, सो बी थरो विद दैट. लाइकवाइज के भी दिया रहेगा तो पीके भी निकालना पड़ेगा. बाय चांस पीके भी नहीं दिया है, डायरेक्टली के भी देके रखा है क्वेश्चन में, देन फाइंड आउट पीके भी इज माइनस लॉग ऑफ के भी. So this was an acidic buffer. So we have done numericals based on buffers. So buffer का पार्ट हो गया हमारा, थियरी तो पहले ही हो चुका था. क्वेश्चंस हो गए बफर्स पे. बफर्स पे बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मतलब जेई मेन में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं, सीईटी में भी आते हैं. एवरी एग्जाम में बफर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट पार्ट. इसमें अभी कुछ ग्राफ्स है, ग्राफ्स हमें समझने हैं. नाउ द बेस्ट पार्ट इज दैट एग्जाम में सीधा आपको ग्राफ दिया रहेगा और आपको पहचानना पड़ेगा. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू ड्रॉ अ ग्राफ, so it's easy to understand. Let's now go ahead. अब देखो ग्राफ्स में क्या है. अब टाइट्रेशन का मतलब होता है कि आप एसिड बेस टाइट्रेशन में अगर आप ले रहे हैं कोई पेयर लाइक अ स्ट्रॉन्ग लाइक एन एसिड एंड अ बेस, तो आप क्या करते हो, एक ब्यूरेट लगाते हैं, ब्यूरेट में डालते हो कुछ, राइट, एंड देन ग्रेजुअली यू कीप एडिंग दैट कंपोनेंट फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू योर कोनिकल फ्लास्क. तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करते हो टाइट्रेशन में, ड्रॉप बाय ड्रॉप. सर ये फिर से बताओ.
ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ टाइट्रेशन, तो क्या होता है ना, तुम बहुत छोटे छोटे अमाउंट, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप बोलते हैं इसके लिए, यू ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप. When you are adding component drop by drop, you are monitoring the value of pH after adding every drop. That is one thing which could be done. Even if you are not monitoring the pH, but आप ये तो देख रहे हो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डाल रहे हो, तो अल्टीमेटली कौन सा ड्रॉप कब तक डालते डालते, ऐसा कब तक ऐसा एक टाइम आता है जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है. मतलब आप ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि उस रिएक्शन का इक्विवेलेंस पॉइंट कहां पे आ रहा है. What is the meaning of equivalence point of an acid-base reaction? Yes, I had told you earlier. What is the meaning of equivalence point of an acid-base reaction? No reactant is left behind. हाँ. So जो solution रहेगा उसमें कोई एसिड अनरिएक्टेड भी नहीं रहेगा, कोई बेस अनरिएक्टेड भी नहीं रहेगा. इक्विवेलेंस पॉइंट का हमेशा मतलब ये होता है कोई अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ एसिड या अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ बेस नहीं रहने वाला है. जो सोल्यूशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर है. Salt and water. So when you want to figure out the equivalence point, उसके लिए आप क्या करते हो, आप इंडिकेटर का जब कलर चेंज होता है तब आप देखते हो. नाउ अगर पीएच का वैल्यू नोट किया जाए तो एक ग्राफ बना सकते हैं. मतलब आफ्टर एडिंग वन ड्रॉप आई एम measuring the pH. After adding again another drop, I am measuring the pH of the solution. Again, after adding another drop, I am measuring the pH of the solution, and so on. Eventually, a point will come when the pH will correspond to the pH at equivalence point. उसके बाद भी मैं वापस डालता रहूंगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, अगर तो वापस pH सोल्यूशन का चेंज होता जाएगा. कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब ऐड करते जाएंगे कोई कंपोनेंट, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इट इज, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल कीप चेंजिंग आफ्टर एवरी ड्रॉप दैट यू ऐड. सो पीएच जो चेंज हो रहा है, उस चेंज को हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं कि हर ड्रॉप के बाद क्या नया पीएच आ रहा है. तो उसको बोलते हैं टाइट्रेशन कर्व या ग्राफ फॉर टाइट्रेशन. टाइट्रेशन ग्राफ या टाइट्रेशन कर्व. तो यहां पे लिख सकते हैं ग्राफ्स और कर्व्स. टाइट्रेशन कर्व्स भी लिख सकते हैं. Now let's go to the first type of titration, that we have strong acid versus strong base. Strong acid versus strong base. इसमें पहले देखते हैं कि अगर हम लोग बेस डाल रहे हैं तो क्या होगा. तो एक्स एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड को प्लॉट कर रहे हैं. सो वी आर एडिंग द बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप. शुरुआत में जब कुछ नहीं था तब सिर्फ एसिड था, बिकॉज तभी तो सिर्फ एसिड सोल्यूशन था क्लास में. अब देखो जब बेस नहीं था, सिर्फ अकेला एसिड था, then this is the point. पॉइंट ए को देखो, जहां पे पॉइंट ए लिखा है मैंने. that point A corresponds to the time when titration has not yet started. That means when you have only the acidic solution inside the flask. इसके लिए देखो उसका pH काफी कम है बिकॉज एसिड है. वाई एक्सिस pH है ना. तो जो पॉइंट ए है वो पॉइंट ए क्या दिखाता है,
वो पॉइंट यही दिखाता है कि अभी तक रिएक्शन चालू नहीं हुआ है, यू जस्ट हैव द एसिड, नथिंग एल्स इज देयर। इसके लिए पीएच इतना कम है बिकॉज एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच कम होता है। नाउ ग्रेजुअली वी आर एडिंग द स्ट्रॉन्ग बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग बेस को ऐड करेंगे तो धीरे धीरे पीएच बढ़ेगा। क्यों पीएच बढ़ेगा? Yes, why is the pH going to increase when I add base? H minus increase. H plus आयंस का concentration कम हो रहा है। सॉल्यूशन में जो H plus आयंस थे वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होते जाएंगे बेस की एडिशन की वजह से। करेक्ट। तो धीरे धीरे पीएच बढ़ना चालू हो जाएगा। तो पीएच बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर रहे, इक्विवेलेंस पॉइंट। देखो E represents the equivalence point and E पे जो pH है वो एग्जैक्ट 7 आएगा। क्यों एग्जैक्ट 7 आएगा? बिकॉज जो सॉल्ट है वो पहली कैटेगरी का सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? लाइक NaCl, KCl, Na2SO4, KBr, K2SO4 ऐसे टाइप के सॉल्ट्स हैं। मतलब ऐसा सॉल्ट जो हाइड्रोलाइज नहीं करता है, तो वो क्या करता है? वो pH 7 देता है। Which means ग्राफ को देख के, इक्विवेलेंस पॉइंट को देख के यू शुड बी एबल टू फिगर आउट व्हाट टाइप ऑफ टाइट्रेशन इट इज। जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया है E के कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच। सो E के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीएच का वैल्यू है 7, which clearly indicates that the salt is of first category and so both acid as well as base must have been strong. दोनों एसिड और बेस अगर स्ट्रांग होंगे तो ही तो पीएच 7 आता है एग्जैक्ट। तो वही हुआ है यहाँ पे। अब वापस देखो, जब तुम इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच चुके हो उसके बाद भी अगर तुम बेस डाल रहे हो तो उसके बाद अगर तुम बेस डाल रहे हो तो ऑब्वियसली अगेन द पीएच इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द बेस। अब ज्यादा बेस हो रहे हैं सॉल्यूशन में, ऐसे करके बेस का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है बिकॉज आप ज्यादा बेस डाल रहे हो। डालते डालते ऐसा हो जाएगा अल्टीमेटली बेस का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा and the pH will become almost equal to 14 at the end because the base is strong. तो अगर आप ज्यादा बेस डाल दोगे तो concentration of base बढ़ेगा। Finally, a time will come when the solution will almost to a pH of 14 और 13 के आसपास रहेगा। तो पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि नेचर ऑफ जो ग्राफ है ये एक्सपेरिमेंटल है, तो आपको ये नेचर ऑफ ग्राफ देख के समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। एंड अनदर थिंग इज दैट ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन बहुत स्टीप होता है। मतलब जब इक्विवेलेंस पॉइंट 7 के बाद और ज्यादा स्टीप होना चाहिए ना? मतलब सर मतलब 7 के बाद OH माइनस बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं होगा ना, तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो ना। बहुत ज्यादा जब होगा तो वो ये पोर्शन है बहुत ज्यादा। हाँ मतलब H प्लस से तो ज्यादा ही होगा ना। हाँ, तो इसके लिए पीएच बढ़ रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। बट व्हेन इट बिकम्स द कंसंट्रेशन ऑफ बेस बिकम्स वेरी हाई, तो ये वाला पोर्शन होता है तब ग्राफ का। So it will depend on the concentration of OH minus. In general, अगर किसी ने पूछा आपको कि कौन से पोर्शन में बेस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आप ये वाला पोर्शन करोगे जहां पर रेक्टेंगल बनाया मैंने, दिस पोर्शन, राइट। दिस पोर्शन में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज वेरी हाई।
और इवेंचुअली वो फिर देखो लाइन हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है। क्यों ऐसा हॉरिजॉन्टल? बिकॉज द पीएच बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 14। तो उसके बाद तो हम लोग पीएच को मेजर करते नहीं है। पीएच ऐसे मतलब 14 हो जाता है तो हम लोग बोल देते हैं वो मैक्सिमम हो गया, तो वहीं पे विल स्टॉप। So it will remain 14 only. Since it will remain 14 only, we are showing a line which is horizontal or parallel to the x-axis. सर आप ये पॉइंट रिपीट कर सकते? फाइनली जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सोल्यूशन में सिर्फ बेस और पानी ही रहेगा। सॉल्ट भी है लेकिन सॉल्ट का तो कोई ये नहीं है ना, और 7 हो गया सॉल्ट का तो अपना और कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। यू आर एडिंग मोर एंड मोर ऑफ बेस, तो डोमिनेट कौन करेगा? बेस, व्हिच इज अ स्ट्रांग बेस दैट टू। तो उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का बहुत बढ़ जाएगा इवेंचुअली। फिर पीएच इक्वल टू 13 या पीएच इक्वल टू 14 तक आ जाएगा। उसके बाद तो वी विल नॉट कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए एंड में हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। This horizontal line shows that the pH is becoming 14 at the end, and it will remain 14. ये हम लोगों ने किया क्या? टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, जहां पे हम लोगों ने बेस ऐड किया धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब ऐसे ही इसी एक्सपेरिमेंट में उल्टा अगर करते तो क्या होता? उल्टा मतलब क्या? चालू किया बेस से, अब डाल रहे हैं एसिड, वी आर एडिंग एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप। सिंस वी आर एडिंग एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो अभी ऐसा ग्राफ हो जाएगा। शुरुआत में जो है सिर्फ बेस है आपके पास, तो अगेन पॉइंट ए देखो, पॉइंट ए ये दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बेस है फ्लास्क के अंदर। टाइट्रेशन का मतलब होता है कि आप एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवा रहे हो, और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के। ऐसा नहीं कि बहुत डाल दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के आप मॉनिटर करते हो, उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। ओके, सो इफ आई लुक एट दिस ग्राफ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? शुरुआत में हमारे पास सिर्फ बेस है, इसके लिए पॉइंट ए जो है वो ये दिखाता है कि सोल्यूशन में सिर्फ बेस है और कुछ नहीं। अब धीरे धीरे एसिड डाल रहे हैं, सो वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड इज प्लॉटेड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब धीरे धीरे पीएच कम होगा, वापस वैसे ही होगा, धीरे धीरे पीएच कम हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जैसे। तो सेकंड ग्राफ किसके बेसिस पे है? Second graph is same, strong acid versus strong base, but now I am adding the acid. That is, now I am adding the acid drop by drop. अभी बेसिक सोल्यूशन के अंदर मैं एसिड डाल रहा हूँ। इसमें क्या था? इसमें पहले एसिड लिया था और एसिड के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस डाला जा रहा था। अभी उल्टा कर रहे हैं, अभी लिया है बेस और बेस के अंदर धीरे धीरे वी आर एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड। व्हाट काइंड ऑफ एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये पूरा जो है हम लोग कर रहे हैं, देखो हेडिंग डाला है मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के। करेक्ट। अब क्या होगा यहाँ पे? वापस वही होगा, एसिड की वजह से the pH will keep decreasing. Eventually a point will come when you get the equivalence point. At equivalence point you just have the salt and water, so pH is 7. और फिर आप और भी डाल रहे हो एसिड। फाइनली वापस वही हो जाएगा, बहुत pH कम हो जाएगा कि एसिड इज स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा हो जाएगा लाइन हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ऑलमोस्ट pH इक्वल टू मानो 0.5 या 0 तक हो गया।
तो ये हो जाएगा आपका। तो ये सबसे आसान ग्राफ था, इसको इसलिए चालू किया हम लोगों ने बिकॉज यहाँ पे जो पीएच है इक्विवेलेंस क्वांटम एग्जैक्टली इक्वल टू 7 आता है। So this was when a strong acid was titrated against a strong base. नेचर ऑफ ग्राफ को याद रखो। Let's go ahead with the next titration. This was the first titration wherein we were titrating strong acid versus strong base. और एक चीज ध्यान में रखनी है, बिकॉज ये एसिड आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है एंड सो ऑन। तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक देखो, अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया 13 स्टार्टिंग पॉइंट पे, व्हाट डज दैट मीन? यहाँ पे 13 लिख दिया तो क्या मतलब है इसका, क्या इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन? स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जैक्टली, दैट मीन्स द बेस इज स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली यहां मानो अगर लिख दिया 2, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो 1 या 2 बेस वीक एसिड के लिए क्या कैप रखेंगे आप? हाँ हाँ, वीक बेस और वीक एसिड के लिए क्या पीएच वैल्यूज तक हम लोग वैल्यूज पीएच के डालेंगे, मानो ऐसा 4 to 6 फॉर एसिड, वीक एसिड, एंड फॉर वीक बेस दे विल पुट 8 to 9। चलो 8 to 10 ले लो, ऐसा होता है। तो वीक एसिड मतलब 4 to 6 रहेगा पीएच का रेंज वीक एसिड के लिए, और वीक बेस होगा तो 8 to 10। दिस इज वन शॉर्टकट। नाउ लेट्स गो अहेड। वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन देखेंगे। वही है वापस, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं। बेस ऐड कर रहे हैं मतलब क्या होगा, शुरुआत में यहाँ पे पॉइंट ए अगर मान लोगे तो पॉइंट ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एसिड है, अभी तक बेस है ही नहीं, राइट। अब थोड़ा ध्यान में क्या रखना है, देखो ये रीजन ऐसा होता है थोड़ा शुरुआत में, मतलब क्या, ये ऐसा देखो कर्व्ड है, तो ये आपको इंडिकेट करेगा, दिस इज द इंडिकेशन, दिस इज द इंडिकेशन, दिस नेचर ऑफ कर्व दैट द एसिड इज वीक। नोटिस द डिफरेंस, ये वाला पोर्शन देखो, क्या है उसका? हाँ उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उस वहां पे बफर बनता जाता है, सॉल्ट एंड एसिड, राइट, सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड अलोंग विद द वीक एसिड, इसके लिए तो वो बफरिंग रीजन की वजह से ये कर्व ऐसा हो जाता है। जबकि अगर आप इसमें देखोगे तो ऐसा था, इसमें इसमें नहीं था, देखो इसमें नॉर्मल वाला था, इट वाज जस्ट लाइक दिस। सो नोटिस द डिफरेंस, ये आपको छोटे मोटे डिफरेंसेस देख के समझ में आएगा कि क्या है एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। So if I just draw like this, that means the acid is strong. ऐसा है सिर्फ, जबकि अभी देखो मैंने कैसे ड्रॉ किया है, अभी ऐसा है, ऐसा नहीं है, इट इज लाइक दिस, वेव फॉर्म, वेव टाइप का है ना। तो अगर आपको ऐसा वेव टाइप का दिख गया तो समझ जाओगे कि क्या है, ये वीक एसिड है। Look at the equivalence point.
इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो पीएच है वो क्या डाला है मैंने अभी 7 से ऊपर डाला है। हाँ, तो ये और एक इंडिकेशन है। What I'm trying to highlight is that आपको एग्जाम में 4 ऐसे ऑप्शंस में एक ऑप्शन को जब चुनना पड़ेगा तो कैसे कैसे ऑब्जर्व करोगे, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो दिस। क्या क्या चीजें देखोगे, देखोगे इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या है पीएच, 7 से ज्यादा है या 7 है या 7 से कम है। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH is more than 7. What does that mean? That means that the base is strong but the acid is weak. Equivalence point अगर 7 से ज्यादा pH शो कर रहा है तो that means this only ना, that the base is strong and the acid is weak. सर अभी आपने क्या बोला, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। Equivalence point पे pH जो है वो 7 से अगर ज्यादा है that means the base is strong but the acid is weak. So titration is between a strong base and a weak acid. If the equivalence point shows a pH of value greater than 7. तो यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है 7 से ऊपर मैंने मार्क किया है। तो एग्जाम में आपको दिख सकता है कहीं पे 8 या 8.2 ऐसा कुछ अगर दिखेगा तो सीधा आप बोल सकते हो ऐसा कि बेस स्ट्रॉन्ग है पर एसिड वीक है। सो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ये पहला था ग्राफ जहां पे हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ बेस ऐड किया है। अब इसी ग्राफ को अलग तरीके से प्लॉट करेंगे जहां पे एसिड ऐड करेंगे भी। वॉल्यूम ऑफ एसिड ऐड कर रहे थे सर, एसिड ऐड कर रहे तो वो स्टार्टिंग में कर्व नहीं कर रहे, नॉर्मली है जैसा पहले था। हाँ, ये नॉर्मली है because when you are adding acid, when you are adding the acid, तो क्या होगा, बोलो, acid will become the limiting reactant, right? For example, अगर ऐसा है सर अगर हम सेम रेट में ऐड कर रहे तो फिर वो स्ट्रेट होना चाहिए था। स्ट्रेट नहीं होता है, प्लीज रिमेंबर दिस। कोई भी यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे इक्वेशन ही मैथमेटिकल नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा? देयर इज नो स्ट्रेट लाइन हियर इन टाइट्रेशन। ओके, नाउ लुक एट दिस इक्वेशन। व्हेन यू आर एडिंग एसिड, ये कौन सा टाइट्रेशन लिया हम लोगों ने? वीक एसिड, राइट? या वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। When you're adding the weak acid drop by drop, मतलब तुम्हारा weak acid जो है वो limiting reactant है, तो शुरुआत में ये नहीं है ना, सिर्फ ये रहेगा और ये बनेगा, तो ये कोई बफर नहीं है। This is not any buffer. इसके लिए यहाँ पे कोई बफरिंग रीजन नहीं दिख रहा है, ऐसा ही नॉर्मल ऐसे ही आ रहा है। ओके, again if you see the pH is more than 7 at equivalence point. और एक बात, ग्राफ जहाँ पे खत्म हो रहा है वो देखो, ग्राफ जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे अगर pH देखेंगे तो ये pH इतना भी कम नहीं है, देखो 1 या 2 तो नहीं है, उससे ज्यादा ही दिख रहा है, बिकॉज दिस इज माय ओरिजिन, राइट? ओरिजिन से थोड़ा ऊपर ही दिख रहा है, मतलब वो 3 या 4 के आसपास दिख रहा है pH एंड में। That again indicates that the acid is weak. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो एंड में pH 1 तक आ जाता ना, यू आर एडिंग एसिड, बट एसिड तो वीक है, इसके लिए जो आपका फाइनल pH है वो भी 4 के आसपास रहेगा। So this is the graph when the acid is weak and the base is strong, and you are adding acid drop by drop.
Next, strong acid versus weak base. Strong acid versus weak base. Now we are adding again base. Look at the equivalence point now. Now the pH at equivalence point is below 7. So अभी हम लोगों ने बेस ऐड किया है. उल्टा जाते हैं अभी वापस. Now we are adding acid. सर मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग है अगर उसको ऐड करे तभी कर्व होगा, वरना नहीं होगा. वो तो बफर जहां पे फॉर्म होगा वहां पे ऐसा कर्व होगा. देखो यहाँ पे बफर बन जा रहे हैं फिर से. क्यों बफर बन रहा है? क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? एसिड ऐड कर रहे हैं. तो NH4OH प्लस HCl वाला एग्जांपल ले लो. When you are adding acid, acid is a limiting reactant, so forget it. तो शुरुआत में ये रहेगा और ये रहेगा. बफर बन गया बेसिक. NH4OH और NH4Cl का मिक्सचर. इसके लिए यहाँ तक आपको ऐसा कर्व दिख रहा है. So this portion is what? Buffer zone. So E is the equivalence point. Again, equivalence point will have a pH below 7. फाइनली ऐसा हो जाएगा क्योंकि एसिड स्ट्रांग है तो काफी पीएच कम हो जाएगा. फाइनली एसिड डालते जा रहे हो तो फाइनली सोल्यूशन में एसिड का बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो जाएगा एंड द पीएच विल बी क्लोज टू 1. इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है you just have salt and water. No acid is left unreacted, no base is left unreacted. So the solution contains just salt and water at equivalence point. सर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं. हाँ देखो next titration, weak acid versus weak base. अब इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वहां पे देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है 7 के ऊपर है या 7 के नीचे है. क्यों ऐसा? रैंडम है वो कहीं पे क्या. We don't know and also don't write 7. Some people what they do they write 7. Don't write 7.
because we don't know what the exact value of pH is. It could be a little more than 7, it could be a little less than 7. जब एसिड और बेस दोनों वीक है तो हम लोग एग्जैक्ट पीएच कितना होगा वो पीके और पीकेबी के वैल्यूज को देखे बिना बता नहीं सकते. So this is when you are adding base. सर तो अगर हमें कोई ग्राफ दिया हो जिसमें 7 ना लिखा हो ई के साथ, तो फिर हम लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं क्या? बट रैंडम है तो 7 के ऊपर भी हो सकता है, 7 के नीचे भी हो सकता है. हाँ, so that is the thing. वो कुछ नहीं लिखा है तो you cannot say कि वो कौन सा ये है point है. It could be below 7, it could be less than, it could be more than 7 also. But then तुमको कुछ और ऐसे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जिसकी वजह से you will understand. For example, अगर यहाँ पे लिख दिया 5 या 4 और यहाँ पे फाइनली लिख दिया 9, so you will understand that means both acid as well as base are weak. So again here volume of acid added है. Now one important thing, कुछ अगर बोला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करना है कि एसिड भी मोनोबेसिक है, बेस भी मोनोएसिडिक है. What do I mean by that? मतलब एसिड इज मोनोबेसिक जैसे HCl, HNO3, CH3COOH, HCOOH, these all are monobasic acids. वैसे ही बेस मोनोएसिडिक होगा जैसे NH4OH, NaOH, KOH. So कुछ बोला नहीं है अगर तो आपको ये अज्यूम करना है ग्राफ्स में. अब अगर बोल दिया, स्पेसिफाई कुछ कर दिया, तो लेट्स स्टार्ट विद सच अ केस. मानो ऐसा कुछ बोला, वीक डाइबेसिक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग मोनोएसिडिक बेस. मतलब क्या? वीक डाइबेसिक एसिड का एग्जांपल ले लो, कोई H2CO3 जैसा वीक डाइबेसिक एसिड. स्ट्रॉन्ग मोनोएसिडिक बेस मतलब NaOH, KOH ऐसा कुछ. So अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है? Let's come. Now see, since it's a weak dibasic acid, weak dibasic acid होगा तो उसका dissociation 2 steps में होगा. तो अब देखो क्या होता है. H2CO3 plus NaOH. ये पहला इक्विवेलेंस पॉइंट ऐसा होगा where you get these two components. इसको ध्यान से समझो. क्या किया है मैंने यहाँ पे? I have found out the first equivalence point. मतलब क्या?
जब सोल्यूशन में सिर्फ NaHCO3 एंड H2O रहेंगे. This is the meaning of first equivalence point. So when a weak dibasic acid like H2CO3 has been treated with a strong base, so the first equivalence point को locate करने के लिए बोला, अगर आपको ग्राफ दे दिया और बताया कि कौन सा है, तो देखो, look at this graph. ऐसा कर्व आएगा. कर्व में ये वाला पॉइंट जो E1 दिख रहा है, that is the first equivalence point. मतलब क्या? मतलब जब ऐसा कोई ग्राफ आएगा तो देखना है. This is the first equivalence point. फिर जब ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, फिर ये होगा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट. मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि जब ये ग्राफ यानी कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे भी देखो ऊपर की ओर जा रहा है, तो उस ऊपर की ओर जब जा रहा है वहां का जो मिड पॉइंट आएगा, that is giving you the equivalence point. Okay, तो जब वो ऊपर की ओर जा रहा है, वहां का जो मिड पॉइंट है, that is giving you the equivalence point. सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा आएगा अभी? This is the second equivalence point now. अब ये बन चुका है. You add further base. You add further. And this is the second equivalence point. सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ Na2CO3 और H2O रहेंगे. So they ask you to identify the equivalence points from graph. Also, you should know the meaning of equivalence points. First equivalence point पे, because sometimes they can ask like this कि first equivalence point पे pH क्या है? The second equivalence point पे pH क्या है? So we will do question later based on that. But उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि equivalence point first कौन सा है और second कौन सा है. Okay, so this was the titration where dibasic acid was added to where a strong base was added to a dibasic acid, weak dibasic acid. इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हुए अगर मैंने ट्राइप्रोटिक एसिड ले लिया, अब ये तो डाइप्रोटिक था, H2CO3 was डाइप्रोटिक. अगर ट्राइप्रोटिक ले लिया तो 3 इक्विवेलेंस पॉइंट्स आएंगे. तो 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ग्राफ में से. Let's do that case. Weak tribasic acid versus strong monoacidic base. हम लोग उल्टा नहीं कर सकते कि वॉल्यूम ऑफ एसिड एडिट करके.
कर सकते हैं बट वी डोंट डू इट इन लैब्स। टाइट्रेशन में ना क्या होता है कि हम लोग यूजुअली ये करते हैं, जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है उसको ही हम लोग ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। दैट इज द रीजन वी डिड नॉट ड्रॉ इट। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ, इसको ही उल्टा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। Coming to this one, weak tribasic acid versus strong monoacidic base. अब तीन इक्विवेलेंस पॉइंट्स आएंगे, अब तीन इक्विवेलेंस पॉइंट्स आएंगे तो आपको मार्क करना पड़ेगा। हाउ विल यू मार्क? अगेन सेम थिंग विल डू। जब ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है वहां पे उसका मिड पॉइंट लोगे। Let's take an example. And now you tell me how I will write the reaction for first equivalence point. Yes, tell me. ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। हो गया। Yes, so let's try this one. बोल। क्या हो इसका रिएक्शन? H3PO4 is a weak acid and it's a tribasic acid. So I'm adding KOH. तो KH2PO4 होगा। अब इसका क्या होगा? पहला इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब एक H प्लस हटाओगे यहां से तो so KH2PO4 plus H2। ऐसा हो जाएगा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या क्या रहेगा? टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स विल बी देयर इन द सॉल्यूशन एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। फिर बेस बाकी रहेगा, सॉल्ट और वाटर। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर होता है। बट फिर नेक्स्ट स्टेप में तो हमें और बेस कर उसको रिएक्ट करना है ना, तो वो कैसे? अभी वो बफर बन जाएगा ना सर। अभी जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया है तब क्या है सॉल्यूशन में? यू आर एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप ना। अच्छा समझा। So what is the first equivalence point? Yes, tell me. First equivalence point पे क्या है? H3PO4 and CH2PO4. I'm repeating again. See, H2PO4 और H2O रहेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे चीजें है ना उनको भूल जाना है पूरी तरह से। रिएक्शन के जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखे होते हैं ना, फॉरगेट देम कंप्लीटली, फोकस ओनली ऑन द प्रोडक्ट्स। सो एट equivalence point, at the first equivalence point we will have only these two things और कुछ नहीं है सॉल्यूशन में। दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जो आपको E1 से दिख रहा है। E1 का मतलब यहाँ पे वो है, सिर्फ ये और ये, नथिंग एल्स। Now I keep adding more base, then this again will react। ये जो है अभी
वापस मैं बेस डालता जाऊंगा तो ये रिएक्ट करेगा, वापस सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा जब पूरी तरह से KH2PO4 खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से KH2PO4 खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा यस क्या लिखूं बोलो, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, KHPO4 होगा। K2HPO4 प्लस H2 plus H2O. This is the second equivalence point when I have only K2HPO4 and H2O. Second equivalence point देखो E2, कैसे समझ में आया कि K2HPO4 फॉर्मूला आएगा, H2PO4 माइनस से एक H प्लस हटा दोगे तो HPO4 2 माइनस ही आएगा ना, तो ये बनेगा, इसके लिए K2HPO4 लिख रहे हैं। I add more and more of base now. Again, I keep adding KOH. What will happen? Third equivalence point तक पहुंचूंगा मैं, क्या होगा रिएक्शन, अब ये जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा बेस, सो K2HPO4 के साथ KOH. Tell me the products for this reaction. K3PO4. Yes, K3PO4 plus H2. जब सिर्फ ये रहेंगे तो इसको बोलेंगे थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। सो इक्विवेलेंस पॉइंट्स में क्या क्या चीजें हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। एसिड और बेस का रिएक्शन कराओ, सॉल्ट एंड वाटर बनाओ, इक्विवेलेंस पॉइंट पे ओनली सॉल्ट एंड वाटर विल बी देयर। So these are the three equivalence points. अच्छा, now my final question to you is that अब जो देखो E1 और E2 के बीच का रीजन है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट एंड सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट का जो बीच का रीजन है, तब क्या क्या है प्रेजेंट सोल्यूशन E1 और E2 के बीच में? सर तब वो सॉल्ट है, वाटर है, जो इवन पे जो सॉल्ट बना वो है वाटर है, और जो बेस ऐड किया हमने वो है। नहीं, let's name them. I mean, let's properly assign the components. I mean, talk about the components. Between E1 and E2 क्या क्या है? पहली बात, E1 पे क्या था? सिर्फ E1 पे क्या था? ये था, this was E1. सिर्फ E2 पे क्या था? This was E2. यहां तक क्लियर है? अभी मैं पूछ रहा हूं कि E1 और E2 के बीच में क्या चीजें प्रेजेंट है? जब तक E2 पहुंचे नहीं है तब क्या है? KH2PO4 and K2HPO4. करेक्ट, तभी ये है क्योंकि आप E2 तक पहुंचे नहीं हो तो ये भी तो रहेगा ना, this thing is going to be left, क्योंकि E2 पे आपका वो नहीं है। E2 का मतलब होता है कि रिएक्टेंट बचा नहीं है, लेकिन जब तक E2 तक आप नहीं पहुंचे हो तब तक तो आपका रिएक्टेंट थोड़ा रहेगा ना। सो बिटवीन E1 एंड E2, between E1 and E2, I have this and also I have this थोड़ा ये बना है ना K2HPO4,
So can I say it's a buffer between E1 and E2? This and this buffer है ना दोनों का मिक्सचर. बफर है कि नहीं है? हाँ सर. वापस मैं ये कर रहा हूं क्या क्या चीजें E1 और E2 के बीच में है. दिस वन एंड दिस वन. जो रेड से मैंने मार्क किया है वो है E1 और E2 के बीच का जो रीजन. ग्राफ का देखो बीच का रीजन E1 एंड E2. So between E1 and E2, I have these things which I have marked with red. So can I say between E1 and E2, it is a mixture of, if I just talk about the ions, then H2PO4 minus and HPO4 2 minus. पोटेशियम को हटा दो, सिर्फ मैं आयंस की अगर बात करूं तो. So can I say between E1 and E2 I have these two things that I have written now with red. अब can I say ये एक एसिड है और ये एक एनाइन है, क्योंकि बफर का मतलब क्या होता है? एसिडिक बफर की अगर बात करें तो एक वीक एसिड और उसी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो एनाइन बन जाता है सॉल्ट का. तो ये कंडीशन यहां पे भी तो सेटिस्फाई हो गया ना. H2PO4 माइनस को एक एसिड मानो. H2PO4 माइनस इज अ वीक एसिड, मैंने लिख दिया इसके लिए एसिड, और उसी का जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज HPO4 2 माइनस, वही एनाइन है ना हमारा. Okay, going back to the simple analogy, CH3COOH and CH3COONA. तो ये एसिड बोलते हो एसिडिक बफर के अंदर, और एनाइन यही है ना, CH3COO माइनस. दिस इज द एनाइन. तो ये एनाइन क्या है? ये CH3CO माइनस इसी का कॉन्जुगेट बेस है ना. यस और नो? CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस इज CH3CO माइनस. तो इन्हीं का मिक्सचर एसिडिक बफर बोलते हो ना, CH3COOH एंड CH3COO माइनस. Yes or no? What happened? So CH3COH के बदले में अब H2PO4 माइनस को ले लो, तो ये एसिड बन गया. और CH3CO माइनस जो एनाइन है उसके बदले में HPO4 2 माइनस को ले लो, बन गया ना ये एक बफर. ये समझ में आया बफर कैसे बना? यस सर. सर वो आप आयन वाला बता सकते हैं कि बफर कैसे? वो एसिड पोटेशियम को हटा दो बस, जस्ट इग्नोर पोटेशियम. K प्लस को हटा दो तो क्या बचेगा? H2PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस. तो अगर H2PO4 माइनस को मैंने बोला एक एसिड है, बोल सकते हैं ना एसिड है उसको. हाँ सर. उसको भी एक एसिड बोल सकते हैं, किसी भी चीज जिसका H प्लस जो देता है उसको बोल सकते हैं ना एसिड. तो H2PO4 माइनस को अगर एक एसिड मान लिया तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज गोइंग टू बी दिस HPO4 2 माइनस. तो वो एक एनाइन भी बोल सकते हैं ना उसको हम लोग. तो एनाइन is nothing but the conjugate base of the weak acid. तो बन गया बफर. So between E1 and E2 you have a buffer.
Similarly, between E2 and E3 again you have a buffer. सर लेकिन वो किसके साथ सॉल्ट भी होना चाहिए। हाँ तो सॉल्ट है ना, पोटेशियम है ना, K प्लस। सिर्फ वैसे मत देखो उसको, focus on the acid and focus on its conjugate base. A mixture of any weak acid and its conjugate base is called an acidic buffer. हाँ सर। So buffer का रीजन अगर कोई इंडिकेट करने बोलेगा तो कौन से बफर के रीजन से? This is buffering region, this is buffer zone, and this is another buffer zone. So there are 3 buffer zones here. क्लियर हो गया? पहला वाला बफर जोन जहां तक E1 नहीं पहुंचे हो तब तक, तो वो कौन सा आएगा? That is H3PO4 and KH2PO4. वही हुआ ना, मतलब H3PO4 और उसका कॉन्जुगेट बेस H2PO4 माइनस, ये हो गया आपका पहला बफर। कहां तक? E1 तक, E1 के पहले तक रहा था, because E1 तो इक्विवेलेंस पॉइंट है। Before E1 you have this, then between E1 and E2 you have this, and between E2 and E3 you have this. This is between E2 and E3. So 3 different buffer zones you have in this. We will continue in the next lecture. Sums भी करेंगे।